হ্যালো ভিউয়ার্স, যা ইচ্ছা তাই ব্লগ ভিডিও থেকে তোমাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাই। আবার তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা তোমাদের শিখতে অনেক সাহায্য করবে। তোমরা যদি একটু মন দিয়ে দেখো তাহলে এখান থেকে তোমরা প্রচুর কিছু ড্রয়িং করতে পারবে, আমার সাহায্য ছাড়াও করতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমি যে প্রসেসে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এই প্রসেসটা তোমাদেরকে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে। हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल जा इच्छा ताई ब्लॉग वीडियो। आप लोग छोटा छोटा बच्चे लोग, आप सभी मेरे साथ में रहिए और मैं नया एक प्रोसेस लेके फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। आज हम लोग दूसरा कुछ सीखेंगे। पहले हम लोग एक चतुर्भुज सीखेंगे। আমরা আগে চতুর্ভুজ শিখব, তারপরে ত্রিভুজ শিখব, अर्थात आयतन क्षेत्र, वर्गक्षेत्र और त्रिभुज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर सीखेंगे आज हम। तो इससे पहले जो पहले वीडियो में लास्ट हमने दिखाया था कि कैसे नाप किया जाता है, तो वो नाप तो एक बार हम लोग को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका रिव्यू हम फिर से एक बार दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और एक चीज़ हम फिर से एक बार बताएंगे, जो कि पॉइंट किसको बोला जाता है और मेज़रमेंट किसको बोला जाता है। तो पॉइंट सिर्फ पेंसिल का माथा में जो होता है, जो मैंने पहले भी बताया था, पेंसिल का माथा में जो होता है वही वाला होता है पॉइंट। यानी कि ये होता है पॉइंट, ये होता है पॉइंट। किसी को हम बताएंगे पॉइंट कहाँ है, तो ये बताएगा ऐसा पॉइंट है। तो কাউকে যদি আমি বলি পয়েন্ট কাকে বলে, তাহলে এটা হলো পয়েন্ট, অর্থাৎ পেন্সিলের মাথাতে যে জিনিসটা আছে। এবার আর একটু ভাঙিয়ে বলি, পয়েন্ট কখনোই এরকম কিংবা এরকম এরকমটা হয় না, কারণ এখানে অনেকগুলো জায়গা তৈরি হয়ে গেছে। আর এখানে শুধুমাত্র একটা জায়গা, যাকেই বলবো সে বুঝিয়ে যাবে যে আমি এই জায়গা থেকে বলছি। यानी कि मैं किसी को भी बताऊंगा पॉइंट कहाँ है, तो सभी इसी को ही दिखा सकता है, क्योंकि वो एक ही জায়গা में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सारा জায়গা है। এখানে দেখো কতগুলো জায়গা তৈরি হয়ে গেছে, অর্থাৎ কোথায় আছে সেই পয়েন্টটা কেউ এক্সাক্ট বলতে পারবে না। কেউ যদি বলে এখানে আছে, তাহলে কেউ বলবে এখানে আছে, তার মানে আমার এই পদ্ধতিটা ভুল, অর্থাৎ এইভাবে করে কখনোই পয়েंट দেওয়া যায় না। यानी कि ऐसे मेजरमेंट, ऐसे पॉइंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जगह है कि किसी को पता नहीं है कहाँ पर है। कोई बताएगा यहाँ, कोई बताएगा यहाँ, तो ऐसा पॉइंट नहीं होता है। सभी को पता होना चाहिए पॉइंट एक ही है और वही है जो मैंने यहाँ पर डाला है। अब आ रहा हूँ मेजरमेंट की तरफ। तो पॉइंट कोई ने दिखाएगा पॉइंट, अगर पॉइंट যদি কেউ দেখায় তাহলে এইভাবে দেখাবে। আর মেজারমেন্ট দেখানোর নিয়ম কিন্তু এরকম নেই, কারণ মেজারমেন্টটা যদি আমার পয়েন্ট এখান থেকে এতটুকু থাকে, তাহলে আমার এই দাগটার মাপ এত বড় হবে। অর্থাৎ মাপ দেখানোর নিয়ম হচ্ছে এরকম, এরকম করে কখনোই মাপ দেখানো যায় না, এইভাবে কখনো মাপ দেখানো যায় না। মাপ দেখানোর নিয়ম হচ্ছে এইভাবে, নাহলে কেউ একটু বলবে বড়োভাবে, এরকমভাবে মাপ দেখানো যায়, এরকমভাবে মাপ দেখানো যায়, অর্থাৎ এইটুকুটা। বা এইটা যদি এবার একটু বড় হয় এরকম, তাহলে সেই মাপটা এবার এত বড় হবে। এইভাবে করে মাপ দেখানো যায়। আর পয়েন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ছোট্ট বিন্দু। তো ছোট্ট বিন্দু এটা হচ্ছে পয়েন্ট। আর দুটো বিন্দু বা তিনটা বিন্দু যদি মিলে থাকে কিংবা মাঝখানটা না থাকে, যদি এখান থেকে পুরো এতখানি থাকে, তাহলে এই দাগটার মাপ হচ্ছে এত বড়। বা যদি এখানে না থাকে, এখানে থাকে, तो पॉइंट यहाँ पर नहीं रहने से, यहाँ पर रहने से, जैसे कि इतना तक रहने से, तो कोई भी बता देगा कि ये दागी का मेजरमेंट यानी कि माप इतना है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट अगर यहाँ पर है, যদি পয়েন্টটা এখানে থাকে, তো সবাই দেখতে পাচ্ছে এই দাগের মাপটা হচ্ছে এত বড়। তো এইভাবে করে পয়েন্ট আর মেজারমেন্ট করা হয়। পয়েंट जो पेंसिल का शीश में रहता है, और मेजरमेंट এটা হয় যে দুটো পয়েন্ট
যেখানে যেখানে থাকুক না কেন, কিংবা কোনো জিনিসের লম্বায় কত বড়, চড়ায় কত বড়, সেইভাবে একটা মেজারমেন্ট থাকে। সেটাই হলো মেজারমেন্ট, অর্থাৎ একটা মাপ থাকে কোনো একটা জিনিসের, হয়তো ওপরের দিক থেকে নিচের মাপ, কিংবা পাশের থেকে পাশের মাপ, কিংবা সামনের থেকে পেছনের মাপ। এগুলো হচ্ছে মেজারমেন্ট। অর্থাৎ মেজারমেন্ট হলো দুটো পয়েন্টের দূরত্ব, সেটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট। কিন্তু একটা পয়েন্ট থেকে কখনোই মাপ তৈরি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত দুটো পয়েন্ট না নেওয়া যায়। এবার আসি আমরা स्क्वायर नहीं, अर्थात वर्गक्षेत्र नहीं आसे। अब हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे। तो पहले देखो कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर किया जाता है, और वो भी मेजरमेंट टूल के बिना, यानी कि नापने का कोई साधन नहीं है, सिर्फ मेरे पास पेंसिल है और रबर है या इरेजर है। तो আমার কাছে শুধু পেন্সিল আর রাবার আছে। এর থেকে আমাকে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার অর্থাৎ চতুর্ভুজ বানাতে হবে, পারফেক্ট, কোনো দিকে ভুল করা যাবে না। তাহলে সেই পদ্ধতিটা দেখো। तो आप लोग भी देखिए, छोटा छोटा छात्र बंधु सब देखो मेरे पास और मेरे साथ में रहो और देखो। तो पहले एक दागी सीधा करके ऐसा, तो प्रथमे আমি একটা দাগ দেব এভাবে। এবার এইভাবে দেওয়ার পরে আমরা হয়তো লেফট সাইডে দেব কিংবা রাইট সাইডে দেব। তা আমি আগে এই পাশটা দেখাই, পরে এখানে যখন হিন্দিতে বলবো তখন এই পাশে দেখো। তাহলে এই পাশে অর্থাৎ আমার লেফট সাইডে আমি একটা আরেকটা সোজা দাগ দিলাম। এবার আমি কোন দাগটা প্রথম দিয়েছি তাহলে সবাই তোমরা বলতে পারো এটা। तो पहले कौन सा वाला दागी दिया, ये वाला दागी। तो इसी का ही नाप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका नाप नहीं लेंगे तो गलती बनेगा। तो प्रथमे আমাদেরকে এই মাপটাই নিতে হবে। तो এরকম করে যে আমরা দাগ টেনেছি, ऐसा যে हम लोग लेफ्ट साइड में दाग को खींचा, अब ये हम राइट साइड में भी कर सकते हैं, जिसका जहाँ मर्जी। तो यानी कि पहले लेफ्ट साइड में भी दे सकते हो या राइट साइड में भी यहाँ पर भी दागी लगा सकते हो। पहले किसी एक दागी, या लेफ्ट साइड का दागी या राइट साइड का दागी। अर्थात তোমরা যারা আছো ছাত্র বন্ধুরা ভালো করে বুঝে নাও, হয়তো আমরা বাঁ দিকের দিকে দাগটা দেব, আর যদি এটা না দিই তাহলে ডান দিকের দিকে দাগটা দেবো। তো যেহেতু আমরা লেফট সাইডে দাগ দিয়েছি, তাহলে আমরা লেফট সাইডে আমাদেরকে প্রথম মাপতে হবে। সেই মাপটা আমি যেরকম আগের বার দেখিয়েছিলাম মাপ কিভাবে করতে হয়, তো সেটাও তোমরা ভালো করে একটু দেখো। তাহলে সেই মাপটা করতে হবে এখানে। যেমন করে আমরা একটা মাপের 4 भाग করেছিলাম, जैसे कि हम लोग एक नाप का 4 हिस्सा बनाया था। फिर से हम दिखा देते हैं। पहले ऐसा था, फिर हम लोग मिडिल किए थे। तो আমরা এরকম ছিল, তো আমরা मिडिल করেছিলাম প্রথমে। तो ये अंदाज থেকে করেছিলাম, ये अंदाज में किया था। अभी नाप को लेना पड़ेगा। तो पेंसिल का माथा यहाँ पर मैंने जैसा बोला था पहले, इसको चेप के रखने से और यहाँ पर नाखून के साथ पकड़ने से और ये उंगली पेंसिल के साथ ऐसा करके उठाने से, उसके बाद नाखून को मिडिल पॉइंट में ले जाना पड़ेगा ऐसा, और लेके यहाँ पर फिर से एक बैरिकेड बना के, ये देखो छोटा पर दिख रहा है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो এটা ছোট ছিল, এটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে সমান সমান হয়ে गया। এরপরে বলেছিলাম এই তিনটা পয়েंट, ये जो 3 पॉइंट बना हुआ है इसको हिलाना नहीं जा सकते, यानी कि पोंछ के इधर उधर, पोंछ के इधर उधर, पोंछ के इधर उधर नहीं किया जा सकता। अर्थात এটাকে মুছে আমরা आगे पीछे করতে পারবো না, কারণ এই पॉइंट থেকে এই पॉइंटेर दूरत्व, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट का जितना लेंथ है सेम टू सेम लेंथ यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला हुआ है। अब हम किसी को पोंछ नहीं सकते, पोंछेंगे तो छोटा या बड़ा हो जाएगा, ये इसको पोंछेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, इसको पोंछेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अर्थात কোনো একটা পয়েন্ট যদি আমি মুছে আগে পিছে করে দিই তাহলে ছোট বড় মাপটা হয়ে যাবে, তখন আর এইভাবে সেম টু সেম মিলে থাকবে না। সেই জন্য এগুলোকে আর হাত দেওয়া যাবে না। এরপরে যখন আমি আগের বার বলেছিলাম সেটা তোমরা ভালো করে আগে দেখে নাও, আগের ভিডিওতে আছে, আমার পাশে থাকো। সেই জন্য বলেছি ভিডিও স্কিপ না করে দেখো, তোমাদের শেখার এখান থেকে প্রচুর কিছু আছে, আর আমি আস্তে আস্তে করে আগাতে থাকবো তোমাদের সাথে নিয়ে, তোমরা আমার পাশে থাকো। तो अभी जो लेंथ बना हुआ है यहाँ से लेके इतना तक, तो अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी
সেম টু সেম, অর্থাৎ আমরা একই মাপ করে রেখেছি। এরপরে আমি যদি বলি एटार मेजरमेंट कोথায় হবে, तो कोई भी जो नया सीख रहा है वो कहीं बता सकते हैं यहाँ पर हो सकता है सर, कोई यहाँ पर भी बताएगा, कोई यहाँ पर भी बताएगा। तो दिखने में क्या होता है, शायद ये छोटा भी पड़ सकता है, बड़ा पड़ सकता है, এটা ছোটও লাগতে পারে, এটা বড়ও লাগতে পারে। সেই জন্য কী করতে হবে, সেই জন্য আমাদেরকে এই মাপটার সাথে এই মাপটাকে মিলাতে হবে, দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আগে পিছে করে দেখে मिलिए নিয়ে समान समान করে এই মাপটাকে এখানে বসাতে হবে। तो प्रोसेस क्या है, ये देखने से लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, छोटा को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करके फिर से देखना पड़ेगा। तो এরকম করে বড় করে দেখলাম, দিয়ে সেম টু সেম মিলাচ্ছি, এখানে দেখছি अभी तक भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको और थोड़ा सा आगे আর একটুখানি আগিয়ে দিতে হবে। আগালে পরে এখন দেখা যাবে এই মাপটা এখানে এখন একদম ঠিক আছে। তার মানে এই যে মাপটা যেটা আমি করলাম, অর্থাৎ এগুলো যদি মুছে দিই তাহলে আমার মাপটা এখানে দাঁড়াচ্ছে, यानी कि मेरा मेजरमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है मतलब अभी सेम टू सेम बन चुका। आप फिर से एक बार नाप के देखते हैं, আরও একবার মেপে দেখছি, তাহলে এইটুকু মাপটা সেম এখানেও দেখাচ্ছে, একই আছে, एक ही जैसा। उसके बाद ये नाप फिर से छोड़ेंगे नहीं, इसको लेके फिर मिडिल पॉइंट में जाएंगे, पहले का मिडिल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पर फिर से बैरिकेड लगा के ऐसा, और फिर मेज़रमेंट कर देंगे तो दिखा जाएगा यहाँ पर भी सेम, यानी कि सेम 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 सेम। तो जैसे ये मैंने पहले भी दिखाया था, आज फिर रिव्यू दिखा रहा हूँ। रिव्यू अगर फिर भी किसी का समझ में नहीं आता है, যদি এরপরে কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমার আগের ভিডিওটাকে খেয়াল করো। তো ঠিক এইভাবেই যেমন করে আমরা মাপ করে সমান সমান চারটা ভাগ করেছিলাম, ঠিক তেমন করেই, यानी कि जैसा हम लोग ये नाप किया था, अभी ये मेज़रमेंट लेके चारों जगह में सेम नाप करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर है। तो पहले ऊपर वाला दागी लगाया था, तो প্রথমে আমরা উপরের দাগটা লাগিয়েছিলাম, এখন সেই মাপটাকে নিয়ে আমরা যেখানে দাগ দিয়েছি, যদি আমরা এই পাশে দাগ দিই তাহলে এটাকে মাপবো, अगर हम लोग यहाँ पर दागी खींचे तो यहाँ पर मेजरमेंट करना है। तो पहले जैसा मैंने लेफ्ट साइड में दागी दिया, तो इसको हम फिर से नापेंगे। तो पेंसिल का माथा जो दागी में है और यहाँ पर नखून पकड़ना पड़ेगा और यहाँ पर पॉइंट खींचना पड़ेगा। तो जब भी मैंने पॉइंट खींच दिया, যখনই আমি পয়েন্ট লাগিয়েছি, তো দেখা যাচ্ছে এই মাপটা এখানেও আছে এতটুকু, তার মানে আরেকবার দেখে নিচ্ছি, এই যে এইটুকু মাপটা এখানে। तो हम लोग क्या किया, एक बार नाप लेके लेफ्ट साइड में एक बार नाप दिया, एक बार नाप के एक बार लेफ्ट साइड में दिया। अब राइट साइड में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ये साइड में दागी नहीं लगाना है, ये साइड में नाप करना पड़ेगा। तो ये नाप फिर से एक बार नाप के এই দাগটা আরও একবার মেপে এই পাশে দিতে হবে, যেই পাশে পুরো ফাঁকা রয়েছে। তাহলে আবারও সেই একই প্রসেস, নখের সাথে নখটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে কেউ ধরবে না, ভুল হয়ে যাবে, নখের সাথে নখটা লাগিয়ে দিতে হবে, তারপরে এখানে পয়েন্ট। তাহলে দেখো বাচ্চা সব ভালো করে দেখো, छोटा छात्र बंधु सब देखो बढ़िया से, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह में है, हो गया। तो यहाँ पर ब्लैंक था, तो मैंने राइट साइड में भी और एक तो पॉइंट लगा दिया। तो पहले लेफ्ट साइड में लगाया दागी के ऊपर, यहाँ पर कोई दागी नहीं है लेकिन पॉइंट मैंने डाल दिया। अब इसके साथ इसको जोड़ दे। तो ऐसा जोड़ने से क्या होगा, देखो क्या होता है, ये वाला दागी जैसा है ठीक उसी हिसाब से रेल लाइन के जैसा ये भी दागी बन चुका है, यानी कि समान समान दागी बन चुका। तो ছোট ছোট ছাত্র বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো তো আমার কথাটা। তো কি বলেছি, ঠিক এইটুকু মাপটা যখন আমরা এখানে দিয়েছি, পয়েন্ট পড়েছে, इतना नाप जो मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ पर भी सेम पॉइंट गिरा है और इसके साथ इसको मैंने जोड़ दिया, অর্থাৎ এটার সাথে এটা আমরা জুড়ে দিলাম। জুড়ে দেওয়াতে কি হলো, এইটা মাপের সাথে সমান হয়ে গেল। अब मैंने 2 बार नापा और 2 बार, एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, सिर्फ नाप दिया, कोई दागी नहीं दिया। अब फिर से एक बार, लास्ट बार, यानी कि 3 बार, ये 3 बार हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और अभी नीचे साइड में देंगे, यानी कि
ये दागी में। तो जैसे हमने ऐसा पकड़ा था, अब ऐसा मेज़रमेंट करके अब नीचे में डालना पड़ेगा, यानी कि ऐसा। तो जैसा ये ऊपर में दिखा रहा है, इसका मतलब इसके साथ ये जोड़ना पड़ेगा, अर्थात এই উপরেরটার সাথে এই নিচেরটা যখন আমরা জুড়ে দিব তখন কি হয়ে যাবে, এই দাগটা সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যাবে আর পুরোপুরি একটা সঠিক স্কোয়ার তৈরি হয়ে যাবে। তার মানে আমাদেরকে থার্ড বার নিচে দিতে হলো, অর্থাৎ ডাউন সাইড অর্থাৎ लोअर साइड, डाउन साइड यानी लोअर साइड मतलब नीचे साइड में। और एक बार, यानी कि इसको 3 बार नापेंगे। एक बार लेफ्ट साइड में पॉइंट देना है, एक बार राइट साइड में पॉइंट देना है, जोड़ना है। जब जोड़ लेंगे तो इसका बराबर लाइन भी बन जाएगा। आप फिर से 3 बार लास्ट बार लेके नीचे में डालेंगे तो इसका नाप यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसके साथ जोड़ देंगे। भूल से भी पहले ये मेजरमेंट बिना यहाँ पर जोड़ना नहीं, अर्थात এই মাপটাকে না করে এইটুকু মাপটাকে যদি না করে থাকো, না করে যদি আগেই এখানে জুড়ে দাও তাহলে সেটা ভুল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই মাপটা যেহেতু এখানে থাকবে না সেই জন্য ছোট আর বড় হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি বললাম, এইটুকু মাপটা মেপে এখানে, यानी कि इतना नाप के एक बार लेफ्ट साइड में, इतना नाप के राइट साइड में पॉइंट, और ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ देंगे। जोड़ने का फिर से नापेंगे, अर्थात आरो एक बार मापबो मेपे नीचे दीबो, यानी कि डाउन साइड में देना पड़ेगा। जब ये पॉइंट ऊपर में ऐसा दिखेगा यानी कि इस टाइप से, तो इस टाइप का मतलब हो गया ऊपर में जाना। तो ऊपर में जाने से इसके साथ जोड़ जाएगा और सेम 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 सेम, जैसे कि सेम 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 बना हुआ है। तो যেমন করে একই রকম ভাবে আছে, এইটাও সবটাই পুরোপুরি একই রকম ভাবে হয়। এর পরের দিন আমি এইটার উপরে একটা টাস্ক দেখাবো, তোমরা আমার সাথে থেকো। এবার আমরা আসব रेक्टेंगल। रेक्टेंगल মানে যার বিপরীত দুটো বাহু समान, यानी कि उल्टा साइड का जो बाहु बोलता है हम लोग, जो मेजरमेंट होता है उल्टा साइड का, यानी कि इसका और इसका यहाँ से जितना लेंथ है यहाँ पर भी सेम टू सेम उतना ही लेंथ, यानी कि इतना नाप जो है तो इतना नाप उल्टा साइड में भी सेम बना हुआ रहेगा ऐसा। तो सेम जब बन गया तो सेम सेम बन गया, और उसके बाद यहाँ पर जितना नाप होगा यहाँ पर, तो इतना नाप नाप के यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो देखो ठीक ही मैंने बना के रखा हुआ है, तो तुम लोग भी ऐसा करके बनाना। तो ये रेक्टेंगल यानी कि आयतक्षेत्र बन जाएगा। आयतक्षेत्र बनने से इसमें भी कुछ काम या कुछ ड्रॉइंग तुम लोग कर सकते हो, अर्थात आयतन क्षेत्र করলেও এখান থেকে অনেক কিছু তোমরা ড্রয়িং করতে পারবে। তো দেখো আমি সম্পূর্ণ মেজারিং টুল ছাড়া, অর্থাৎ স্কেল, সেট স্কোয়ার, পেন্সিল কম্পাস এসব ছাড়া আমি ড্রয়িং করছি শুধুমাত্র পেন্সিল আর হাতের সাহায্যে। तो তোমরা এই পদ্ধতিগুলো নাও, তোমাদেরকে কোনো इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते होवे ना, आप लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं पड़ेगा। ऐसा हाथ से तुम आप लोग बढ़िया से कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो। तो हम लोग पहले स्क्वायर बनाया, फिर रेक्टेंगल बनाया, आज अब आएंगे ट्रायंगल का ऊपर, यानी कि त्रिभुज के ऊपर। तो त्रिभुज कैसा बनता है, तो त्रिभुज एक बढ़िया बनाने से पहले हमको बेस बनाना जरूरी है। बेस मतलब एक दागी नीचे साइड में, जब हम नीचे साइड में कर देंगे तो যেমন করে আমি মাঝখানে একটা নিচের দিকে একটা दाग दी दिलाम। अब इसको नाप करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके इसका मिडिल कहाँ होगा वो भी नापना पड़ेगा। तो ये इतना नाप यहाँ पर भी मैंने डाला, तो दिखाई दे रहा है सेम टू सेम बन गया। अब इतना नाप को मिडिल पॉइंट से ऊपर में भी डालेंगे ऐसा। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, इतना नाप यहाँ पर भी आ गया, अर्थात এইটুকু মাপটা এখানেও চলে আসলো। এখন দেখো মজার বিষয়, এইটার সাথে যদি আমি এইটাকে जुड़े दी, यानी कि ये पॉइंट से अगर हम ये पॉइंट जोड़ देंगे तो दिखाई दे रहा है
यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। अगर हमको ऐसा ट्रायंगल नहीं चाहिए, दूसरा टाइप का चाहिए, तो फिर से हम इसके साथ ये भी जोड़ देंगे। तो इसके साथ ये जोड़ने से और एक तो ट्रायंगल बन गया। कैसे? इतना इतना इतना। अब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहेगा, जब ये नहीं रहेगा तो दूसरा टाइप का एक ट्रायंगल बन गया। तो इसी हिसाब से मेजरमेंट करके अगर करेंगे तो ड्राइंग भी अच्छा ही बनेगा, कोई भूल इससे निकल नहीं सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ में रहिए, বাচ্চারা সব আমার পাশে থাকো, আমার সাথে থাকো। আর আমার এই যা ইচ্ছা তাই চ্যানেলটাকে নিজের মতন করে নাও, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, যদি ভালো লাগে শেয়ার করো। আজকে এই পর্যন্তই, আবারও পরের ভিডিওতে দেখা হবে। সেই ভিডিওতে আমি এই যে চতুর্ভুজ বানিয়েছি अर्थात स्क्वायर जो मैंने बनाया, इसका ऊपर में कोई ड्राइंग हम डालेंगे, तो वो ज़रूर देख लेना। कैसे मेज़रमेंट भी रहेगा, लेकिन बिना टूल्स का, यानी कि मेज़रमेंट टूल बिना हम लोग कितना बढ़िया तरीके से मेज़रमेंट करके ड्राइंग करेंगे। ये धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखना बच्चों लोग, तुम लोग का भी ये आसान बन जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग भी इससे तुम लोग निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।